subscribe BARZS and don't forget to hit the bell icon to get all important notifications. How are you? I hope you're all fine. So today is our sixth lecture and the topic of sixth lecture is input and output in C++ escape sequence. So let's get started. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. So today is our sixth lecture and the topic of sixth lecture is input and output in C++ and escape sequence. So input and output in C++. C++ comes with libraries which provides us with many ways for performing input and output. In C++, input and output is performed in the form of a sequence of bytes or more commonly known as streams. Input stream, if the direction of flow of bytes is from the device, for example keyboard, to the main memory, then this process is called input. Output stream, if the direction of flow of bytes is opposite, that is from main memory to device display screen, then this process is called output. So friends, जो चीज़ हम कंप्यूटर से टाइप करके कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी में स्टोर करवाते हैं या उसके स्टोरेज मीडियम में कुछ भी स्टोर करवा रहे हैं तो वो है इनपुट, और जो भी चीज़ कंप्यूटर हमें प्रोसेसिंग के बाद डिस्प्ले स्क्रीन पर शो करवा रहा है वो चीज़ है आउटपुट. वो सेम चीज़ ऐसे ही वर्क करते हैं C++ में इनपुट एंड आउटपुट. C++ के अंदर जो हम इनपुट के लिए जो यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट वो है सीन ऑब्जेक्ट, जिसकी लाइब्रेरी है IO स्ट्रीम की, और जो आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम यूज़ करते हैं वो है Cout, उसकी भी लाइब्रेरीज जो हैं वो IO स्ट्रीम में पड़ी हैं. सीन से हम किसी भी वेरिएबल्स में कोई भी यूज़र से इनपुट लेते हैं, और जो Cout है उसकी मदद से हम डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई भी चीज़ जो कि प्रोग्रामर डिस्प्ले करवाना चाहता है यूज़र को या डिस्प्ले स्क्रीन पर, तो वो Cout की मदद से की जाती है. ये Cout जो है ये आउटपुट है और जो सीन है वो इनपुट है. Header file available in C++ for input and output operations are IO stream. IO stream stands for standard input output stream. This header file contains definitions to objects like cin, cout, ser, etc. The two keyboards cout in C++ and cin in C++ are used very often for printing outputs and taking inputs respectively. These two are the most basic method of taking input and printing output in C++. To use cin and cout in C++, one must include the header file iostream in the program. So friends, जो iostream जो header file है इसके अंदर जो cin और cout जो कि input और output objects हैं, इनकी जो library files हैं वो सारी की सारी iostreams के अंदर पड़ी होती हैं, और उसी की मदद से वो जो सीन है वो इनपुट लेता है और Cout जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन पर. स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम Cout. Usually the standard output device is the display screen. The C++ Cout statement is the instance of the iostream class. It is used to produce output on the standard output device, which is usually the device screen. The data needed to be displayed on the screen is inserted into the standard output stream Cout using an insertion operator. So friends, ये जो insertion operator ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये insertion operator है. ये Cout से के हम पहले Cout लिखते हैं, फिर insertion operator, और फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट डिस्प्ले करवानी है वो टाइप करते हैं. अगर ये insertion पॉइंट नहीं लगाएंगे तो वो कंपाइलर हमें एरर देगा. Cout में insertion पॉइंट लगाते हैं, इनको insertion पॉइंट कर देते हैं, और ये cin में ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं और उसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वो हम अभी पढ़ते हैं. स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम cin. Usually the input device in a computer is the keyboard. C++ cin statements is the instance of the class iostream and is used to read input from the standard input device, which is usually a keyboard. The extraction operator. So friend, ये extraction operator Cout में जो है वो insertion operator और जो cin में वो extraction, ये दोनों opposite है. ये extraction operator है, वो insertion operator.
is used along with the object seen for reading input. The extraction operator extracts the data from the object seen which is entered using the keyboard. So friends, ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये जो भी हम डाटा है ये यूज़र से डिमांड करता है कि कोई भी जो डाटा आपने इनपुट करना है वो इनपुट करें. अगर ये हम एक्सट्रैक्शन पॉइंट नहीं लगाएंगे तो ये कंपाइलर इसका एरर देगा और वो हमसे कोई भी डाटा नहीं मांगेगा, सीन वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा. तो सी इन पहले राइट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन पॉइंट जो राइट करेंगे वो एक्सट्रैक्शन पॉइंट उससे हेल्प करेंगे देखने में कि अब यूज़र से इनपुट लेनी है तो वो उस जो वेरिएबल हमने स्टोर करवाया है तो उसके अंदर वो उसमें इनपुट देगा. ये काम है सी इन का. सो नेक्स्ट है एस्केप सीक्वेंस. Escape sequence are special characters used in control string to modify the format of an output. These specific characters are translated into another character or a sequence of characters that may be difficult to represent directly. For example, you want to put a line break in the output of a C++ statement, then you will use \n character, which is an escape sequence itself. An escape sequence consists of two or more characters. For all sequences, the first character will be \, that is \. The other characters determine the interpretation of escape sequence. For example, n of a \n tells the cursor to move on the next line. So जो फ्रेंड्स जो escape sequence होते हैं ये हमें जो टेक्स्ट लिखा है हम उसकी फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी अगर कोई टेक्स्ट है, हम हेलो वर्ड है, हेलो के बाद अगर \n लिखेंगे तो वो हेलो के बाद जो है वो हमारा कर्सर वो नेक्स्ट लाइन पर मूव करेगा और जो वर्ड है वो न्यू लाइन पर प्रिंट होगा. सो इसी तरह अगर हमने कोडिंग को डिज़ाइन करने के लिए या कोई भी अगर शेप वगैरह बनानी है प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर कोई भी हमने कोई बार्स बनाने हैं, कोई टेबल्स, कोई कॉलम्स या कोई रो, तो उनकी जो फॉर्मेटिंग के लिए है वो हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं. फर्स्ट एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन \n, वेयर द न्यू लाइन इज नेसेसरी इन द आउटपुट. Then this escape sequence is used. For example, cout computer \n science semicolon. First of all, computer is printed and then \n shifts the cursor to the next line. Then science is printed on the second line. So friend, ये आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर फर्स्ट प्रिंट हुआ है, उसके बाद जो \n escape sequence हमने यूज़ की है उसने जो कर्सर है उसे न्यू लाइन पर मूव करवाया है और then साइंस प्रिंट किया गया है. नेक्स्ट है टैब \t. ये जो टैब है ये जो है टैब ये वाइट स्पेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. जो एक टैब है वो 8 स्पेसिस के इक्वल होता है. 8 वाइट स्पेसिस अगर हो तो एक टैब बनता है. अ टैब इज इक्वल टू 8 स्पेसिस. Whenever tab button is pressed from the keyboard, then 8 spaces are left blank. This escape sequence performs the functionality of tab key in the output stream. The code given below will insert a tab between two words. जैसा कि लिखा हुआ cout insertion point double quotes computer \t science quotes terminator. So friends, सबसे पहले कंप्यूटर प्रिंट होगा, फिर \t जो है वो अपनी 8 स्पेसेस का वर्क करेगी. \t की मदद से 8 स्पेसेस आएंगे कंप्यूटर के बाद, फिर देन साइंस प्रिंट होगा. ये वर्क है \t जो कि एक सेप सीक्वेंस है और ये 8 वाइट स्पेसेस के इक्वल एक सिंगल टैब होता है. उसके बाद है \b. Whenever we want to delete a single character, we press the button backspace from our keyboard. The same functionality can be achieved in C++ output with these escape sequence. For example, cout computer \b. ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर पूरा नहीं लिखा गया, कंप्यूटर साइंस कंप्लीट लिखा गया, लेकिन कंप्यूट ई के बाद आर मिसिंग है. आर क्यों मिसिंग है? वो \b की वजह से मिसिंग है. जो \b है वो बैकस्पेस का वर्क कर रही है और जैसे कंप्यूटर प्रिंट हो गया, कंप्यूटर कंप्लीट प्रिंट हुआ और उसके बाद जब \b एग्जीक्यूट हुआ तो उसने एक बैकस्पेस प्रेस की जिसकी वजह से जो आर था लास्ट कैरेक्टर वो इरेज हो गया और कंप्यूट साइंस हमें नजर आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर इज प्रिंटेड एंड आफ्टर दैट \b comes which deletes the last character that is r. After that science is printed. So friends, ये वर्क है \b का. उसके बाद है carriage return \r. कैरेज रिटर्न का मतलब है, इसका मतलब है जो कर्सर है हमारा वो बिल्कुल स्टार्ट पर आ जाएगा. जैसा कि हम जिस जगह से हमने स्टार्ट किया था लिखना उसी जगह पर जब \r एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो कर्सर होगा वो फुली उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा.
This escape sequence move the cursor at the beginning of current line. For example, cout computer \r science. First of all, computer is printed and after that \r comes, which move the cursor at the beginning of the line, and science is printed, which overrides the word written before. जो साइंस है वो कंप्यूटर के वर्ड के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा और कंप्यूटर हमें नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमें सिर्फ साइंस नजर आएगा। ये \r जो कि एस्केप सीक्वेंस है, ये उसका वर्क है, ये कैरेज रिटर्न का वर्क है कि अगर जिस जगह पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, ये वहां से डायरेक्ट जो कर्सर है की पोजीशन है उसे मेन स्टार्टिंग पॉइंट पर कर देगी। आगे है नेक्स्ट फॉर्म फीड \f. दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड इन प्रिंटिंग. It is used to insert a blank paper in the printed output. For example, cout computer \f science. After printing computer, the computer will include a blank paper and then print science. So friends, जो \f है ये एक न्यू, जो \f है ये हमेशा जिस जगह पर भी इस्तेमाल होगा उससे, अगर हमने कंप्यूटर के बाद \f किया तो कंप्यूटर फर्स्ट प्रिंट होगा। जब ये \f आएगा तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये हमें एक न्यू पेज इंसर्ट करने का बता रहा है, तो उसमें वो एक न्यू पेज इंसर्ट किया जाएगा, ब्लैंक पेज। फिर उसके बाद जो न्यू पेज है उसके बाद जो है वो साइंस प्रिंट किया जाएगा। तो ये फंक्शन है फॉर्म फीड यानी कि \f का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम अब जो कवर करेंगे वो सिर्फ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।